Students, now we will be studying the 6th lesson of your 10th standard My English course book. It's a chapter named World Heritage. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, to have significant cultural or natural importance to humanity. As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. Because World Heritage sites are places that are significant culturally and naturally, they vary in type and include forests, lakes, monuments, buildings and cities. एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिटरमाइन की जाती है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि वो एक अच्छा कल्चरल या नेचुरल इम्पोर्टेंस होल्ड करें इंसानियत को। ऐसे ये जो साइट्स होते हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं और इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं और इनको एडमिनिस्टर यूनेस्को करता है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। ये प्लेसेस जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस, ये सिग्निफिकेंट कल्चरली और नेचुरली होते हैं। वो वेरी यानी अलग अलग होते हैं और वो जंगल, लेक्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स और शहर सब इंक्लूड करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, Mount Huangshan in China is a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics. World Heritage Sites combination भी हो सकते हैं बहुत ही cultural और बहुत ही natural areas दोनों के। Example, जो चाइना में जो माउंट हुआंगशान है is a site जो इट इज़ विथ सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन कल्चर बिकॉज क्योंकि इसने एक हिस्टोरिकल चाइनीज़ आर्ट और लिटरेचर में रोल प्ले किया, और ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका जो फिजिकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके कारण। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स और क्वालिटी, यानी क्वालिटी या वो दिखने में जैसा होता है जिसको दूसरे इससे अलग करता है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, momentum for its actual creation was not until the 1950s. In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. To protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to higher ground. The project cost an estimated US $80 million, $40 million of which came from 50 different countries. Because of the project's success, UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. 1954 में इजिप्ट ने प्लान करना शुरू किया आसवान हाई डैम बनाने का, एक डैम बनाने का, ताकि वो इकट्ठा कर सके और कंट्रोल कर सके पानी नाइल रिवर का। जो शुरू का प्लान था डैम का कंस्ट्रक्शन का, उसने जो वैली थी जिसमें अबू सिम्बल टेम्पल्स और एंशिएंट इजिप्ट आर्टिफैक्ट्स मीन्स एनी ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कोई भी चीज़ जो इंसान ने बनाई हो वो फ्लडेड, इनमें बाढ़ आ जाती। इन्हें बचाने के लिए, इन्हें मंदिर और आर्टिफैक्ट्स को बचाने के लिए यूनेस्को ने लॉन्च किया एक इंटरनेशनल कैंपेन 1959 में, जिसका एम ये था कि डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड, यानी डिसमेंटलिंग मीन डिसेंबल पुलिंग डाउन, यानी डिसमेंटल यानी तोड़ के और मंदिरों को मूव करना थोड़े ऊंचे ग्राउंड पे। ये प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था वो $80 मिलियन था, जिसमें से 40 मिलियन 50 अलग अलग देशों से आया। इस प्रोजेक्ट के सक्सेस के कारण यूनेस्को और जो इंटरनेशनल काउंसिल थे ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स initiated a draft convention
to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. Shortly thereafter, in 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic and cultural sites, but to also protect the world's significant natural and scenic sites. Finally, in 1968, the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. Following the presentation of these goals, the Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. थोड़े टाइम बाद 1965 में वाइट हाउस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ इन अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसका एम ये था कि वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाए एक प्रोटेक्ट करने के लिए हिस्टोरिक और कल्चरल साइट्स को, पर दुनिया के सिग्निफिकेंट यानी विभिन्न नेचुरल और सीनिक साइट्स को भी। आखिरकार 3 साल बाद 1968 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर उन्होंने डेवलप किया सिमिलर गोल्स और इन्हें यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव रखा ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम, स्वीडन इन 1972। स्टॉकहोम, स्वीडन में 1972 में उन्होंने प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के बाद इन गोल्स के द कन्वेंशन कंसर्निंग, यानी ये जो कन्वेंशन था इसका जो मोटो था, यानी जिसका कंसर्न ये था प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, यानी प्रोटेक्शन यानी बचाना वर्ल्ड दुनिया के कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को, वॉज अडॉप्टेड बाय, इसको यूनेस्को ने अडॉप्ट किया जनरल कॉन्फ्रेंस में 16 नवंबर 1972 को। द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site. The committee meets once a year and consists of representatives from 21 state parties that are elected for 6-year terms by the World Heritage Center's General Assembly. The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage List. आज जो वर्ल्ड हेरिटेज कमी है, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो है वो सबसे मेन ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल है ऐसे स्थापना करने में इन साइट्स की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड होंगे। ये कमिटी साल में एक बार मिलती है और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं 21 अलग स्टेट पार्टीज़ के, जो 6 साल के टर्म्स पे इलेक्ट होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के जनरल असेंबली से। जो स्टेट पार्टीज़ होती है वो फिर रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो ढूंढे और नॉमिनेट करे नए साइट्स को उनके टेरिटरी में जिनको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। There are 5 steps in becoming a World Heritage Site, the first of which is for a country or state party to take an inventory. Inventory means a detailed list of its significant cultural and natural sites. This is called the tentative list, and it is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. Next, countries are then able to select sites from their tentative lists to be included on a nomination file. The third step is a review of the nomination file by 2 advisory bodies consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union, who then make recommendations to the World Heritage Committee. 5 मेन स्टेप है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने में, जिसमें पहला ये है कोई भी कंट्री या स्टेट पार्टी के लिए कि वो एक बहुत ही डिटेल्ड लिस्ट दे उसके अलग अलग कल्चरल और नेचुरल साइट्स की। ये इसको कहते हैं टेंटेटिव लिस्ट, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो नॉमिनेशन यानी जिनका नाम डाला जाता है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की नॉमिनेशन के लिए, वो तब तक कंसिडर नहीं होंगे जब तक नॉमिनेटेड साइट जो है वो पहले टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड होगी। उसके बाद
जो देश है उनको साइट सिलेक्ट करने मिलते हैं उनके टेंटेटिव लिस्ट से टू बी इंक्लूडेड ऑन अ नॉमिनेशन फाइल, जिनको नॉमिनेशन फाइल में इंक्लूड किया जाता है। तीसरा स्टेप ये है कि रिव्यू होता है नॉमिनेशन फाइल का और 2 एडवाइजरी बॉडीज से, जिनमें इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन होते हैं, जो फिर रेकमेंड करते हैं। रिकमेंडेशंस मीन सजेशंस, प्रपोजल्स, यानी जो नाम आगे बढ़ाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के लिए। The World Heritage Committee meets once a year to review these recommendations and decide which sites will be added to the World Heritage List. The final step in becoming a World Heritage Site is determining whether or not a nominated site meets at least one of 10 selection criteria. The World Heritage Site साल में एक बार मिलती है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी साल में एक बार मिलती है इन रिकमेंडेशंस को रिव्यू करने के लिए, और फिर डिसीजन लिया जाता है कि कौन से साइट जो होंगे वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को ऐड होंगे। आखिरी स्टेप वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने में ये है कि ये डिटरमाइन करने में कि एक नॉमिनेटेड साइट एटलीस्ट 10 में से एक सिलेक्शन क्राइटेरिया मीट करती है। अगर साइट इन क्राइटेरिया, इफ द साइट मीट्स दिस क्राइटेरिया, इट कैन देन बी इंस्क्राइब्ड on the World Heritage List. Once a site goes through this process and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also becomes considered within the international community. अगर वो साइट इन क्राइटेरिया, इन शर्तों को मिलती है तो फिर उसका नाम इंस्क्राइब मीन्स टू प्रिंट, टू राइट और टू एनग्रेव, यानी उसका नाम उभरा जा सकता है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। एक बार ये साइट इस प्रोसेस से गुजर जाती है और ये चूज़ हो जाती है, ये उस कंट्री की प्रॉपर्टी हो जाती है, उस देश की प्रॉपर्टी हो जाती है, ऑन हुज टेरिटरी, जिसके टेरिटरी मीन्स रीजन, जिसके रीजन में वो आती है, पर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी कंसिडर होने लग जाती है। टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। As of 2009, there are 890 World Heritage Sites that are located in 148 countries. 689 of these sites are cultural and include places like the Sydney Opera House in Australia and the Historic Center of Vienna in Austria. 176 are natural and feature locations as US's Yellowstone and Grand Canyon National Parks. 25 of the World Heritage Sites are considered mixed, that is natural and cultural. Peru's Machu Picchu is one of these. Italy has the highest number of World Heritage Sites with 44. 2009 के मुताबिक कुल मिला के 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 148 देशों में है। 689 जो इनमें से है वो कल्चरल है, और ये ऐसी जगह इंक्लूड करते हैं जैसे सिडनी ओपेरा हाउस जो ऑस्ट्रेलिया में है और हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना जो ऑस्ट्रिया में है। 176 जो है वो नेचुरल है और वो ऐसे लोकेशंस है जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का येलोस्टोन एंड ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क जो है। 25 इन साइट्स में से मिक्स्ड है, जिन्हें नेचुरल और कल्चरल दोनों, जैसे पेरू का माचू पिचू एक है। इटली में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है विथ 44। India has 36, 28 cultural, 7 natural and 1 mixed World Heritage Sites. The World Heritage Committee has divided the world's countries into 5 geographic zones which include 1 Africa, 2 Arab states, 3rd Asia Pacific including Australia and Oceania, 4 Europe and North America and 5th Latin America and the Caribbean. भारत में 36 जिनमें से 28 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है वर्ल्ड, ऐसे 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उन्होंने दुनिया के देशों को 5 जियोग्राफिक, यानी उनके एरिया जहाँ वो आते हैं उस हिसाब से 5 जियोग्राफिक जोन में डाला है, जो है पहला अफ्रीका, दूसरा अरब स्टेट, तीसरा एशिया पैसिफिक जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया आता है, 4th यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, 5th लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। Like many natural and cultural sites around the world,
Many World Heritage Sites are in danger of being destroyed or lost due to war, poaching, natural disasters like earthquakes, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acid rain. बहुत सारे नेचुरल और हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स की तरह बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी संकट में हैं नष्ट होने के, और कारण इनके और खो जाने के वॉर यानी लड़ाई के कारण पोचिंग यानी जानवरों को मारना, शिकार करना, नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कि भूकंप, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन मीन्स इंक्लूड मोर एरियाज इन सिटीज़, एक्सपैंड सिटी एरिया यानी सिर्फ शहरों में एरिया बढ़ाते जाना, शहरों को बड़ा करना, बहुत ही भारी मात्रा में टूरिस्ट आना यानी पर्यटक बहुत ही भारी मात्रा में आना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन. World Heritage Sites that are in danger and inscribed on a separate list of World Heritage Sites in danger, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site. वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो संकट में है वो इंस्क्राइब किए अलग लिस्ट में, जिनका जो लिस्ट का नाम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर. इसके कारण वर्ल्ड हेरिटेज कमी एलोकेट मीन्स असाइन यानी अलग फंड उनको एलोकेट कर यानी उनको दे सकती है वर्ल्ड हेरिटेज फंड में से उसको बचाने के लिए. इन एडिशन डिफरेंट प्लान्स आर पुट इनटू प्लेस टू प्रोटेक्ट एंड और रिस्टोर दैट साइट. If, however, a site loses the characteristics which allowed for it to be originally included on the World Heritage List, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. To learn more about World Heritage Sites, visit World Heritage Center's website at whc.unesco.org.